नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषामेव वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहोराज चंद्र ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय स्वाध्यायમાં શ્રી ઇષ્ટોપદેશ સત્શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। શ્રીમદ પૂજ્યપાદ સ્વામી વિરચિત શ્લોકનો પ્રથમ પારાયણ કરીએ। પહેલો શ્લોક સૌ સાથે। આપ પુસ્તક લે લો, આપણી પુસ્તક। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता। वरं व्रतैः पदं देवं नाव्रतेर्वत नारकं छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। चलो पहला श्लोकનો अर्थ કોણ બતાવશે? खाली अर्थ बताना છે। जिसके संपूर्ण कर्मों का भाव होने पर स्वयं ही आत्मा, संपूर्ण कर्मों का अभाव होने पर हाँ स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, ऐसे परमात्मा को वंदन नमस्कार करता हूँ। अच्छा, वेरी गुड, सरस। के
कि कर्मों का अभाव होने से स्वयं ही जिसको स्वभाव की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे सम्यक ज्ञान रूपी, संज्ञान रूपा ऐसा लिखा ना, सम्यक ज्ञान रूपी परमात्मा को नमस्कार हो, उनके लिए नमस्कार हो। तस्मै का मतलब उनके लिए नमस्कार हो। मतलब पंच परमेष्ठि में किसको नमस्कार किया है? अरिहंतों को किया है कि सिद्धों को किया है कि आचार्यों को? सिद्धों को किया। चलो बीजा श्लोकનો अर्थ બહેનોમાં માસી આગળની સીટો ખાલી છે, આગળ બેસી જવાનું. હા, કોઈ નહીં આવે. अच्छा, हाँ आ माइक ये माइक दे दो पीछे. શ્લોકોનો અર્થ તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ બધાને. બીજા શ્લોકમાં સુવર્ણનો દાખલો આપ્યો છે કે સુવર્ણ પાષાણમાં જેમ સુવર્ણ છે તેવી રીતે જીવ પોતાની યોગ્ય ઉપાદાન અને નિમિત્તની શક્તિથી એટલે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ આદિ મળતા પણ શિવ થઈ શકે છે. વેરી ગુડ. પણ અહીંયા નિમિત્તની ક્યાં વાત આવી? દ્રવ્યાદિમાં સ્વાદી લખ્યું છે, સ્વદ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ લખ્યું છે, પરદ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ નથી લખ્યું. એટલે અહીંયા પરમાર્થથી જીવ કેવી રીતે શિવ થાય છે, પરમાત્મા થાય છે, એનો અહીંયા બતાવ્યું છે કે યોગ્ય ઉપાદાન યોગ્ય નહીં, યોગ્ય ઉપાદાન કારણના યોગથી. એટલે યોગ્ય ઉપાદાન કારણ કયું છે? સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વકાળ અને સ્વભાવ. આ યોગ્ય ઉપાદાન છે. આની યોગ્યતાથી જીવ છે તે શિવ થાય છે. જેમ કે સુવર્ણ પાષાણ સુવર્ણ થઈ જાય છે, એવી રીતે છે. ચાલો, વેરી ગુડ. ત્રીજાનો અર્થ ભાઈઓમાંથી અનુપમભાઈ તમે બતાવો. સરળ છે. વરમ વ્રતૈ પદમ દેવમ ના વ્રતેર્વત નારકમ છાયા તપસ્થયોર ભેદ પ્રતિપાલ્યતોર મહાન. શિરીષ દાદા, હા માઇક બોલો, માઇકમાં બોલો. વ્રતો દ્વારા દેવગતિ પ્રાપ્ત કરવી સારી છે અપેક્ષાએ કે અવ્રતોથી નરકાદિમાં જવું. હવે દ્રષ્ટાંત. હા, જેમ બે મિત્રો હોય, એક કોઈકની પ્રતીક્ષામાં ઊભા હોય તો એક તડકામાં ઊભો રહીને એક છાંયડામાં ઊભો રહીને પ્રતીક્ષા કરે છે. કામ તો પ્રતીક્ષા કરવાનું જ છે, પણ છાંયડામાં ઊભો રહે છે એને સુખ મળે છે અને તડકામાં ઊભો રહી દુઃખી થાય છે. હા, તો જેમ છાયામાં અને તડકામાં ઊભા રહેલા બે મિત્રોમાં ભેદ છે, મહાન ભેદ છે, એવી રીતે અહીંયા વ્રત અને અવ્રતી રહેવામાં મહાન ભેદ છે. એટલે વ્રતી રહેવું સારું. ચાલો હવે આગળ. જી, વ્રતમાં અગત્યના 5 વ્રત છે: અહિંસા, સત્ય, અચૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ. મુખ્ય વ્રત આ જ છે, બીજા બધા એના પેટા વિભાગ છે. અણુવ્રત હોય ને એ દેશ સર્વતો અણુમહતી એવું સૂત્ર છે. હા બરાબર. તો નાના વ્રત હોય ને દેશ વ્રત કહેવાય, એ શ્રાવક માટે હોય. એ 5 જ હોય. અને જે મુનિ પાળે એનું નામ મહાવ્રત કહેવાય, શ્રાવક પાળે એનું નામ અણુવ્રત કહેવાય. બસ. તો આપણે અણુવ્રતી તો થઈ શકીએ ને, ઇઝી છે. ચલો હવે આગળ એમ કે છે કે ભાઈ તમે અહીંયા કીધું કે
વ્રત લેવાથી સ્વર્ગનું સુખ મળે છે ને એ સહજ છે, સ્વર્ગ આદિ સુખ મળે. તો ભાઈ આપણે સ્વર્ગનું સુખ મળે એવો વ્રત જ કરવું નહીં, બીજું બધું આત્માને શુદ્ધ ઉપયોગને આ બધું કરવાની શું જરૂર છે? આપણને સારી રીતે વ્રતોનું જ પાલન કરવું આપણે, તો એનાથી જ સુખ મળે સારું. તમે કીધું કે સ્વર્ગનું સુખ વગેરે એ સુખ એમાં મળે જ છે સારું. તો પછી આ આત્મજ્ઞાન કરવું અને આત્મસમાધિ કરવી ને એની શું જરૂર છે એમ અહીંયા શંકા કરે છે. તો એને કહે છે કે ભાઈ એક જ ભાવ છે એ બંને પ્રકારથી લાભ આપે છે. તો એનું છે કે એક જે ભાવ છે રત્નત્રયનો ભાવ, એના ભાવના જ ઉપલક્ષણથી સ્વર્ગ આદિનું સુખ પણ મળે છે અને મોક્ષ પણ મળે છે. એટલે તમારે સ્વર્ગ આદિનું સુખ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો પણ તમારે ધર્મ જ કર્તવ્ય છે, બીજાથી મળવાનું નથી. એટલે મોટો જે વસ્તુ છે એના આચરણ કરો તો નાની વસ્તુ ઓટોમેટિક મળી જાય છે. એમ કોઈકની ઈચ્છા એવી છે કે ભાઈ મારે મુખ્યમંત્રી બનવું છે, ચીફ મિનિસ્ટર. કોઈ એમ કહે કે અમે તમને પ્રધાનમંત્રી બનાવી દઈએ, તો પેલો મુખ્યમંત્રી બને? મુખ્યમંત્રી નહીં બને, કેમ કે પ્રધાનમંત્રી બન્યો એટલે તો મુખ્યમંત્રીઓનો સરદાર થઈ ગયો. તો આ પ્રધાનમંત્રી છે જે પ્રત્યત્રય વિતરાગ ભાવ છે તે પ્રધાનમંત્રી છે, એમાં બધા આવી જાય છે. તો એ ભાવની વાત કરે છે. ચાલો, યત્ર ભાવઃ શિવમ દત્તે यत्र भावः शिवं दत्ते દ્યોઃ કિયદ્દૂરવર્તિને. द्योग्यदूरवर्तिनि યત્ર ભાવઃ શિવમ દત્તે यत्र भावः शिवं दत्ते દ્યોઃ કિયદ્દૂરવર્તિને. द्योग्यदूरवर्तिनि યો નયત્યાશુ ગવ્યુતિમ यो नयत्यासु गव्युतिं ક્રોશાર્ધે કિમ સસીદતિ. क्रोशार्धे किं ससीदति યો નયત્યાશુ ગવ્યુતિમ यो नयत्यासु गव्युतिं ક્રોશાર્ધે કિમ સસીદતિ. क्रोशार्धे किं ससीदति હવે પહેલી લીટી બધાને સાથે બોલવાની, એટલે ઝેલવાની. સોરી. યત્ર ભાવઃ શિવમ દત્તે દ્યોઃ કિયદ્દૂરવર્તિને. यत्र भावः शिवं दत्ते द्योग्यदूरवर्तिनि યો નયત્યાશુ ગવ્યુતિમ ક્રોશાર્ધે કિમ સસીદતિ. यो नयत्यासु गव्युतिं क्रोशार्धे किं ससीदति ચલો હવે બે વાર બધા સાથે બોલવાનું. યત્ર ભાવઃ શિવમ દત્તે દ્યોઃ કિયદ્દૂરવર્તિને. યો નયત્યાશુ ગવ્યુતિમ ક્રોશાર્ધે કિમ સસીદતિ. યત્ર ભાવઃ શિવમ દત્તે દ્યોઃ કિયદ્દૂરવર્તિને. યો નયત્યાશુ ગવ્યુતિમ ક્રોશાર્ધે કિમ સસીદતિ. અર્થ. યત્ર એટલે જહાં, ભાવ એટલે ભાવ. અહીંયા કયો ભાવ લેવાનો? રત્નત્રય રૂપ આત્મભાવ એટલે વિતરાગ ભાવ અથવા શુદ્ધોપયોગ. શિવમ દત્તે, જે આત્મભાવ શિવમ દત્તે એટલે શિવ એટલે મોક્ષને આપે છે, કલ્યાણને આપે છે, તેના માટે. દ્યોઃ કિયદ્દૂરવર્તિની, દ્યોઃ એટલે સ્વર્ગ. સ્વર્ગ એના માટે કેટલું દૂર છે? मतलब कुछ भी दूर नहीं है, वो स्वर्ग तो ऑटोमेटिक दे देगा. अब एग्जाम्पल उसका दृष्टांत देते हैं. यो नयत्याशु गव्युतिम. यो मतलब यह जो नयति ले जाता है, कोई भी भार ले जाता है, वजन ले जाता है कोई भी. आशु एकदम जल्दी से, शीघ्र ही. कितना? गव्युतिम. गव्युति का अर्थ होता है 2 कोश. 2 कोश की एक गव्युति होती है. तो उसके लिए क्रोशार्धे किम ससिद्धति. तो आधा कोश उसको जाने में, उस वजन को ले जाने में क्या कष्ट होगा? सिद्धति मतलब क्या, किस प्रकार का कष्ट होगा? अर्थात कोई भी कष्ट होगा नहीं. कहने का भाव ये है कि जिस भाव से
मोक्ष प्राप्त होता है, उस भाव की साधना में बाकी के संसार के सुख तो ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। ये जितने भी सांसारिक बड़े बड़े पद हैं ना, वो सभी रत्नत्रय की आराधना करने वालों को मिलते हैं। देखो, स्वर्ग का इंद्र पद वो भी रत्नत्रयधारी मुनि को मिलता है, चक्रवर्ती वो भी रत्नत्रयधारी मुनि को मिलता है, और जितने भी त्रिषष्टि शलाका पुरुष हैं वो सभी रत्नत्रयधारी मुनि को ये पद मिलते हैं। नीचे वाले इसके लिए योग्य नहीं होते हैं। ऐसे बड़े बड़े पद ऑटोमेटिक, और मुनि शुद्धोपयोग की साधना करता है। उस शुद्धोपयोग की साधना के फल स्वरूप उसमें व्रतादि के पालन करने में वगैरह जो शुभ राग है अथवा शुभ उपयोग है, उसके फल स्वरूप उनको इस प्रकार का पुण्य का बंध ऑटोमेटिक हो जाता है। चाहते नहीं हैं पर वो अपने आप हो जाता, ऐसे परमाणु आ जाते हैं तो वो इस प्रकार का वैभव अपने आप पैदा कर देते हैं। जैसे अपने भक्ति करते हैं, तो भक्ति किस लिए करते हैं? भगवान के प्रति अपने चित्त को भगवान में, उस परमात्मा पद में लगाने के लिए भक्ति करते हैं। अब अपनों ने ऐसा कोई विचार तो नहीं किया ना कि मैं भक्ति करूंगा तो मेरे को स्वर्ग मिलेगा, मेरे को पुण्य होगा, ये तो कुछ भाव होते नहीं है। सच्चा साधक होता है उसमें कोई भाव होता नहीं है। वो केवल भक्ति इसलिए करता है कि मेरा मन संसार की चीजों में, वस्तुओं में लगता रहता है, डामाडोल होता रहता है। इसलिए इस डामाडोल मन को एकाग्र करने के लिए भगवान की भक्ति में जोड़ने का है, और मुझे कोई प्रयोजन नहीं है उसका। इस प्रकार से भक्ति करते हैं, तो उस भक्ति करते समय जो उसकी मन की, वचन की और काय की चेष्टाएं होती है, उस मन की, वचन की और काय की चेष्टाओं से शुभ परमाणुओं का आश्रव होता है, और उस शुभ परमाणुओं का आश्रव है वो फिर बाद में साता को उत्पन्न करता है। उस समय तो उसको आनंद आता ही है, मजा आता ही है, एक विशेष प्रकार का सात्विक आनंद, और पाप कर्मों की निर्जरा भी उस समय होती है। परंतु बाद में भी वो जो परमाणु उसके अपने आप चिपक गए हैं उसके अंदर, तो वो बाद में साता उत्पन्न करते हैं। इसलिए निष्काम भाव से कोई भी क्रिया करनी चाहिए। कहने का अर्थ ऐसा है, तल्लीन होकर के करनी चाहिए, कोई अपेक्षा अपने को नहीं है। हम जीवों की रक्षा करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किस भाव से करते हैं? हमारा क्या भाव रहता है? भाई अपना तो कोई स्वार्थ है नहीं, सामने वाले को साता मिले और उसमें अपने को अच्छा लगता है। मुख्य बात क्या है कि उसमें हमें अच्छा लगता है। जैसे किसी को हमने दान दे दिया तो वो दान देते और सामने वाला खुश होता है, प्रसन्न होता है, उसको कुछ कष्ट दूर होता है, तो हमें अच्छा लगता है। बस ये जो हमें अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं, हमारा स्वभाव ही त्याग है। आत्मा का स्वभाव क्या है? त्याग है। इसलिए जितना हम त्याग करेंगे ना, इतनी अंदर से आत्मिक प्रसन्नता बढ़ती जाती है। वो तो क्या है कि बुद्धि के विपर्यास से व्यक्ति दुखी होता है कभी कभी, कि देखो मैं इतना दे दूंगा तो वो मेरे पास खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो। ऐसा नहीं है, वो तो आप स्वभाव के विपरीत जा रहे हो। संग्रह का स्वभाव नहीं है, इकट्ठा करके रखने का स्वभाव आत्मा का नहीं है। आत्मा का स्वभाव त्याग और बलिदान का है। 10 धर्मों में त्याग आता है कि नहीं आता है? हाँ, सब कुछ त्याग कर देना, बस ये आत्मा का स्वभाव है। और किसी भी वस्तु का हम त्याग कर देते हैं, इसका मतलब हम अपने स्वभाव को साध रहे हैं। किसको साध रहे हैं? स्वभाव को साध रहे हैं। ये स्वभाव की साधना है। मतलब दान करना है और भी कुछ भी करना है तो हम स्वभाव साध रहे हैं। और जब हम स्वभाव साधते हैं उस समय हमको ऑटोमेटिक आत्मा का एक विशिष्ट प्रकार का अनिर्वचनीय आनंद आता है। वो किसी व्यक्ति के सापेक्ष नहीं है वो आनंद,
वो तो अपने त्याग स्वभाव के उघाड़ होने से आया है और वो कर्मों की निर्जरा करता है। और उस समय सामने वाले की जो साता हो, इस प्रकार के हमारे जो भाव होते हैं, प्रशस्त भाव, उससे ये सारा पुण्य का आदि का बंध होता है। तो देखो, दान देने में दो प्रकार की साधना हुई। पहली साधना तो दान देते समय अपने दूसरे के प्रति जो प्रशस्त अनुराग भाव है, उस अनुराग भाव से तो क्या हुआ, अपने को पुण्य का बंध हुआ। तो वो तो आपको स्वर्ग आदि के सुख वगैरह जो भी है वो सारा कराएगा। और दूसरा क्या हुआ कि अपने त्याग भाव का, त्याग स्वभाव का उघाड़ हुआ, तो वो अपने आत्मा को लाभ हुआ। इस त्याग भाव के उघाड़ से संवर निर्जरा होती है, और वो सामने वाले को साता करने का जो भाव है, उससे पुण्य का अनुबंध होता है। तो एक ही प्रकार के भाव में वो दोनों प्रकार के काम अपने हो जाते हैं। तो हमने तो क्या किया कि भाई ले जाओ, कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं है, अपना तो कुछ है नहीं। तो इसलिए जो सम्यक दृष्टि पूर्वक का जो दान करता है ना, उसको संवर निर्जरा का भी लाभ होता है। पर सम्यक दृष्टि पूर्वक का दान नहीं करता है, और ये मेरी वस्तुएं हैं और मैं आपको देता हूं, आपका भला हो, इस प्रकार केवल एक अनुराग बुद्धि से करता है, उसको केवल पुण्य का बंध होता है कि भाई देखो, ये मेरे पास ये है और ये आप ले लो, आपके कुछ काम आएगी। ये केवल पुण्य का बंध कराता है, परंतु अंदर से उसको ऐसा भाव है कि ये मेरी नहीं है, इस जगत में मेरा कोई हो सकता नहीं है, ये कहीं से मेरे पास आ गया है, आपके काम आए तो ठीक है। तो अंदर आपने क्या किया कि मेरापना नहीं है उस दान के प्रति, उस पैसे के प्रति, अथवा कोई भी वस्तु है उसके प्रति मेरा है, ऐसा स्वामीपना नहीं है। वो स्वामीपना रहित होकर के जो अकर्ता भाव से दान देते हैं, उस दान का फल वो त्याग भाव पैदा करता है, त्याग स्वभाव पैदा करता है। और केवल दूसरों का अच्छा हो इसलिए मैं आपको देता हूं, अथवा इस प्रकार का जो मेरे पने का भाव रख के करते हैं, उससे पुण्य का बंध होता है। दोनों प्रकार से ये होता है। तो सम्यक दृष्टिपूर्वक का किया है तो पुण्य का भी होगा और संवर निर्जरा का भी लाभ मिलेगा। और केवल दूसरों के हित के लिए किया है तो उसमें केवल पुण्य का बंध होगा। इसलिए अब अपने को किस भाव से करना है वो समझना। निर्ममत्व भाव से, निष्काम भाव से करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिक होने वाले। इसलिए अपने को सच्चे बनिए बनना चाहिए। सच्चा बनिया कौन होता है कि जो दोनों तरफ से सब प्रकार का लाभ सोच लेता है, वो सच्चा बनिया होता है। तो क्यों नीचे का भाव क्यों करें अपन? अपने तो अपने आत्मभावी करें ना, इससे सब हो जाता है, ऑटोमेटिक सब अपने आप होता है। चलो, कहने का अर्थ ये है कि हमेशा वितराग भाव का लक्ष्य रखना चाहिए। ये जो वितराग भाव है, वो वितराग भाव कहो, समता भाव कहो, समभाव कहो, रत्नत्रय की अभेदता कहो, साम्य भाव कहो, तप भाव कहो, निर्जरा भाव कहो, संवर भाव कहो, ये सभी एकार्थवाचक अथवा शुद्धोपयोग कहो, शुद्ध भाव कहो, ये सभी एकार्थवाचक शब्द हैं। तो इस या ज्ञायक भाव सबसे अच्छा क्या है? ज्ञायक भाव अथवा सहज चैतन्य अथवा ज्ञाता दृष्टा अथवा साक्षी, कितने नाम आगे देखो। एक ही भाव के इतने सारे नाम होते हैं। बस ये भाव पकड़ लेना अपने, उस भाव में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयत्न करना, तो अपने पाप पुण्य, पाप का तो क्षय हो ही जाएगा और ऑटोमेटिक पुण्य बंधेगा और हमारा बहुत जल्दी मोक्ष होता है। चलो, इसके संबंध में किसी को प्रश्न? हाँ, कुछ प्रश्न? हाँ, મારું ધન એમ કરીને આપે हाँ, તો પુણ્યભાવ તો બંધાય છે, हाँ, સાથે સાથે મિથ્યાત્વનું પાપ ભાવ બી બંધાય છે. वो तो है ही।
वो इसलिए तो वो प्रशस्त नहीं कहा, ये मेरा है और मैं आपको देता हूं, तो उसमें मिथ्यात्व चल रहा है, तो उसका बंध तो उसको निरंतर हो रहा है, परंतु उसने दूसरों का हित सोचा है, इसलिए उसको पुण्य का बंध हो रहा है। पाप का बंध तो इस जीव को निरंतर हो रहा है, हमेशा चलता है। आप जब पुण्य भाव करते हैं उस समय भी पाप प्रक्रिया तो बंद ही रही है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये जितनी है वो तो सारे सारे पाप प्रकृतियाँ ही है ना, उनका तो बंध हो ही रहा है, परंतु वो क्या है कि उसका स्थिति अनुभाग मंद होता है, इसलिए साता का बंध विशेष प्रकार का होता है, इसलिए उसको पुण्य भाव कहा, पुण्य बंधता है ऐसे। इसलिए सबसे पहले तो कर्ता भाव मिटाना चाहिए कि इस जगत में मेरा कुछ हो सकता है, ये भ्रांति ही गलत है। मैं अपने शरीर का दान देता हूँ, मैंने रक्त दान किया, किसका रक्त है? हाँ, किसका रक्त है तो भाई रक्त दान कर रहा हूँ। मैंने चक्षु का दान किया, मैंने इसका दान किया, तो ये है ही नहीं तो हम दान क्या करो। हाँ, ये हमारा पड़ोसी है और आपके कोई उपयोग में आए तो ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। इसलिए मेरा वचन, मेरा मन और मेरी काय अगर दूसरों के उपयोग में आती है तो वो ठीक है, हो सकती है, पर वो वास्तव में मेरी नहीं है। ये तो हम मेरा कहते हैं, क्योंकि शब्द का एक मर्यादा होती है ना, नहीं तो किसका कहो इसको। अंदर से मेरापना नहीं है, पर उसको कहना ही पड़ता है कि भाई ये ब्लड ग्रुप ये किसने दिया भाई, तो सामने वाला यूँ कहेगा ये भाई मेरा है, पर एक्चुअल में कोई ब्लड अपना हो तो जाए ही नहीं दूसरे के अंदर। जो जावे सो मेरा नहीं और मेरा है सो जावे। इसलिए हमसे जो जो अलग हो जाता है वो हमारा कदापि नहीं था, और जो हमसे आके मिलता है वो भी हमारा कदापि नहीं है। हम तो हमेशा वैसे वैसे ही रहते हैं। हमारा जो आत्मा असंख्यात प्रदेशी अनंत गुण युक्त आत्मा है, वो हमेशा तीन काल में असंख्यात प्रदेशी अनंत गुण युक्त ही रहता है। उसमें न कभी कमी होती है, न कभी बढ़ोतरी होती है। ऐसा, इसी का नाम समता है। समता रमता ऐसा कहा नहीं, ये समता कहलाता, एक जैसा हमेशा रहता है। बस ये लक्ष्य अपने को रखना, कुछ भी देते समय और कुछ भी ग्रहण करते समय। देते हैं तो भी मेरा नहीं है, जिसका है उसके पास चला जाएगा, और ग्रहण करते हैं तो भी मैं कुछ ग्रहण करता नहीं हूँ, मैं तो सहज ज्ञाता दृष्टा आत्मा। ग्रहण करना, बाहर से किसी वस्तु का ग्रहण करना, वो मेरा स्वभाव नहीं है। ये तो अपनी अयोग्यता के कारण से शरीर को चलाने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं इत्यादि और प्रकार से ग्रहण करते हैं, पर इसका कर्तापना बिल्कुल होना चाहिए नहीं। जब तक कर्तापना और भोक्तापना का भाव नहीं जाता है तब तक यथार्थ में धर्म चालू होता नहीं। चलो આગળનો શ્લોક થઈ ગયો। अब ये कहते हैं कि भाई आपने व्रतों का बारे में बताया था, स्वर्ग के सुख के बारे में बताया, स्वर्ग का सुख मिलता है, स्वर्ग वगैरह मिलते हैं, तो जरा ये तो बताओ कि स्वर्ग का सुख होता कैसा है। आपने वर्णन तो कर दिया कि स्वर्ग सुख भी मिलेगा, तो भाई तो आचार्य को पूछते हैं कि शिष्य पूछ रहा है कि स्वर्ग का सुख कैसा होता है, वो तो थोड़ा बताओ। तो अब स्वर्ग के सुख को बताते हैं कि स्वर्ग का सुख कैसा होता है। सावधानी रखने, अपने स्वर्ग के सुख का वर्णन सुनते समय सावधानी रखना, क्योंकि हमको अंदर से लोभ भाव पैदा हो सकता है, क्योंकि वो सुख ऐसा ही है, और अनादिकाल से संस्कार तो वही पड़े हुए ना, मिथ्यात्वादी के संस्कार है, तो जीव को कहीं न कहीं इसमें लोभ हो जाता है। इसलिए फिर छठी गाथा तुरंत रखी है उन्होंने कि व्यक्ति को ऐसा नहीं हो जाए कि ये उपादेय है। पहले तो बहुत बड़ा चढ़ा करके स्वर्ग सुख का वर्णन किया और छठी गाथा में तुरंत उसका निषेध कर दिया। ये आचार्यों की शैली होती है, जो जैसा है वैसा बताते हैं, पर तुरंत उसमें हे उपादेय का विवेक भी करा देते हैं, ये ग्रहण करने जैसा नहीं है। ज्ञानार्णव में
आचार्य शुक्लचंद्र महाराज ने प्राणायाम का बहुत विस्तार से वर्णन किया। ये जो प्राणायाम करते हैं ना, उससे उसकी कितनी शक्ति होती है, मतलब वो वो प्राणायाम अगर कोई वास्तव में साध लेता है प्राणायाम, तो बैठे बैठे चंद्र और सूर्य की गति को हिला दे, ऐसी उसमें सामर्थ्य होती है। उस श्वास को, वायु को जिसमें वश कर लिया ऐसा। तो बहुत चिति शक्ति नाम का एक चैप्टर लिखा उन्होंने, उसमें उन्होंने ये सारा वर्णन किया, त्रितत्व ऐसा करके, और सारा वर्णन करके बाद में उन्होंने एक गाथा टपका दी, मुनि को प्राणायाम की साधना नहीं करनी चाहिए। अगर मुनि प्राणायाम की साधना करता है तो उसको पाप होता है। आटलू मोटू वर्णन કરીને પછી છેલ્લે કહી દો कि ये साधना मुनि को नहीं करनी, क्योंकि इससे जीवों की हिंसा होती है। अब जबरन श्वास खींचोगे कि नहीं खींचोगे, तो मुनि को तो इतना ही है कि उसको तो सहज जीने के लिए श्वसन क्रिया करनी है, आरोग्य के लिए नहीं करनी। उसको जीने के लिए तो सहज श्वास आता है और जाता है, और अगर आप ज़्यादा खींच के लेते हो, इसका मतलब आपने वायु का एक जीवों की हिंसा की, इसलिए आपके महाव्रत में दोष लग गया आपके। इसलिए मुनि नहीं कर सकता है इसको, और इन सबको भी रिद्धि सिद्धियों को सबको खत्म कर दिया। तो पहले तो वर्णन कर रही है स्वर्ग के सुख का जी। हाँ, पर उसमें प्राणायाम करने का लक्ष्य नहीं है। प्रश्न ऐसा है कि ओमकार ध्वनि में प्राणायाम होता है कि नहीं होता है, पर उसमें प्राणायाम का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य किसका है? ओमकार का लक्ष्य है। पंच परमेष्ठी ओमकार में समा जाते हैं, लक्ष्य उसका, वो तो सहज होता है। आप कुछ भी मंत्र बोलो ना, उसमें प्राणायाम होता है ऑटोमेटिक, उसमें दोष नहीं है। परंतु पूरक करो, रेचक करो, कुंभक करो, बंध लगाओ, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, ये 3 बंद लगाओ, ये मुनि को निषेध किया है। ये नहीं करने का है हमने, क्योंकि ये सब देह की ममत्व बढ़ाते हैं। चलो आगे, तो स्वर्ग का सुख कैसा होता है उसका वर्णन करते हैं। ऋषिकजमनातंकम दीर्घकालोपलालितम नाके नाकोक्सां सौख्यम नाके नाकोकसामिव ऋषिकजमनातंकम दीर्घकालोपलालितम नाके नाकोक्सां सौख्यम नाके नाकोकसामिव। अब एक एक लाइन। ऋषिकजमनातंकम दीर्घकालोपलालितम नाके नाकोकसां सौख्यम नाके नाकोकसामिव। अब 2 बार एक साथ। ऋषिकजमनातंकम दीर्घकालोपलालितम नाके नाकोकसां सौख्यम नाके नाकोकसामिव। ऋषिकजमनातंकम दीर्घकालोपलालितम नाके नाकोकसां सौख्यम नाके नाकोकसामिव। इस शास्त्र की विशेषता लिखना कि हर एक में कोई न कोई दृष्टांत देकर के पहली पंक्ति लिखते हैं, वो सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, दूसरा उस सिद्धांत का दृष्टांत देते हैं। हर एक में दृष्टांत आएगा हर श्लोक में। ये पूज्यपाद स्वामी। चलो तो अर्थ कहते हैं, नाके नाकोक्सां सौख्यम। नाके का मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग में। नाकोक्सां सौख्यम, देवों का, नाकोक का मतलब होता है देव, तो स्वर्ग में देवों का सौख्यम सुख। नाके नाकोक्सामिव, स्वर्ग में देवों के समान ही होता है। मतलब स्वर्ग में जो देवों का सुख होता है वो स्वर्ग में देवों के समान ही होता है।
उसकी कोई उपमा कर सकते नहीं है, दूसरी किसी चीज से हम उपमा नहीं दे सकते हैं उसको। तो वो कैसा है उसको बताते हैं पहली पंक्ति में। ऋषिकज, पहला तो वो सुख है, वो ऋषि का मतलब होता है इंद्रियां। तो ऋषिकज, जो मतलब उत्पन्न होना, तो इंद्रियों से उत्पन्न है पहला तो वो सुख, इसलिए वो आत्म सुख नहीं है। पहली बात, स्वाभाविक सुख नहीं है। परंतु फिर भी कैसा है, अनातंकम, आतंक रहित है। आतंक किसे कहते हैं कि जब सुख भोगते हैं उस समय उस सुख के छीने जाने का जब डर रहता है तो वो सुख आतंक वाला है। अथवा सुख में कहीं कम हो जाएगा वो डर हो, अथवा कोई हमसे छीन लेगा, कोई हमको अटैक कर देगा, कोई इस प्रकार का, तो वो डर होता है इसमें। तो बिना डर का है। स्वर्ग के देवों के सुख को कोई नहीं छीन सकता है। स्वर्ग में जितनी संपत्ति होती है उस संपत्ति को कोई नहीं छीन सकता है, उसकी रिद्धि सिद्धि को कोई नहीं छीन सकता है। वो उसके पुण्य का उदय है तो वो हो जाता है, ऑटोमेटिक उसमें है। कोई ऐसा नहीं, अपने वो कहानियाँ पढ़ते हैं ना, वो रामायण ने महाभारत देखते हैं, वो असुर निकला राक्षस ने, वो इंद्र के पद को, इंद्र के आसन पर अधिकार कर लिया ने, इंद्र को हटा दिया ने, इंद्र से लड़ाई की। ऐसा होता नहीं है। ये तो सब देवों का अवर्णवाद है। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई विघ्न, जितनी आयुष्य देव गति की होती है उतनी आयुष्य तक किसी प्रकार का कोई विघ्न देव को आता नहीं। कोई मनुष्य अथवा कोई व्यक्ति उसको विघ्न कर सकता। उसका निर्बाध ऐसा इंद्रिय जनित पुण्य जनित वो सुख होता है, आतंक से रहित है। ऐसा नहीं है कि वो इंद्रदेव हैं तो वो भाई बड़े देव हैं, इसलिए वो दूसरे देवों की देवियाँ उसको पसंद आ गई तो जबरदस्ती उसकी देवी बना ली। इस प्रकार का देवों में नहीं होता है। देवों में किसी प्रकार का कोई व्यभिचार नहीं होता है। प्रत्येक देव की अपनी जो नियोगिनी देवियाँ होती हैं, कम से कम एक देव की 32 देवियाँ होती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा तो हजारों लाखों असंख्यात, इंद्र की असंख्यात देवियाँ हो जाती हैं, आती हैं और फिर थोड़े साल रहती हैं और फिर वो वापस उसका आयुष्य पूरा हो जाता है, और इंद्र का आयुष्य बहुत होता है। तो अपने देव अपनी देवियों में संतुष्ट रहते हैं, अपनी संपत्ति में संतुष्ट रहते हैं। किसी प्रकार का वहाँ अतिक्रमण नहीं होता है, कोई व्यभिचार, कोई लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार का कुछ नहीं होता है। एक सामान्य एक दूसरे की संपत्ति देख करके थोड़ा मत्सर भाव इत्यादि हो जाता है, पर वो बाहर प्रकट नहीं होता है। फिर उससे झगड़ा नहीं करते हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े क्लेश इत्यादि स्वर्ग में कुछ नहीं है, इसलिए तो उसको स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग ऐसा है, अनातंक है, आतंक से रहित है। और फिर दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ काल तक उपलालित मतलब सेवित है। किससे सेवित है? एक तो स्वयं अपने पुण्य से सेवित है, दूसरा देविया वगैरह अथवा देव वगैरह, देव देविया उनकी सेवा करते हैं, सब एक दूसरे की सेवा करते हैं, इसलिए वो उपलालित है, मतलब अन्य से दीर्घ काल तक। और कितने समय तक रहता है वो? दीर्घ काल तक रहता है। छोटे मोटे ऐसे ना, मनुष्य का होगा अपना तो चक्रवर्ती का सुख होगा तो कितने दिन तक रहेगा? थोड़े सालों तक रहेगा, 100 साल 200 साल करोड़ साल अबज साल इतना रह सकता है। पर यहाँ तो सागरों में होता है, सागरों तक रहता है। इसलिए सागर संख्या इतनी होती है कि वो हम नहीं गिन सकते हैं, असंख्यात वर्ष होता है, इसलिए उसको अमर कहते हैं। देवों को अमर इसलिए कहते हैं कि वो कभी मरने वाले नहीं हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मरने वाले हैं, मरने वाले नहीं है ऐसा नहीं है, मरने वाले तो हैं, पर इतना लंबा काल है, इतना लंबा काल है कि हम गिनते गिनते थक जाए तो भी हम गिनती नहीं कर सकते। अभी विश्व में कितने समुंदर है अपने? 7 समुंदर है। उन 7 समुंदर के पानी है ना, उन 7 समुंदर के पानी की बूंद करो, एक एक बूंद, कितनी बूंदें होती हैं? 7 समुंदरों के पानी की कितनी बूंदें होती हैं? हाँ, वो जितनी बूंदें होती है ना, उन बूंदों में उतने का गुणा करो, उन बूंदों में उतने ही बूंदों का गुणा करो, जितने साल होते हैं ना उससे ज्यादा साल एक सागर होता है।
एक सागर इतना ज़्यादा साल होता है, अपनी गिनती से, अपनी कल्पना से वो बाहर वस्तु, इसलिए उनको अमर कहते हैं। ये अमर हो गया सब, सागरों की आयुष्य होती है इसको, परंतु उनको पता नहीं चलता ये कब जाते हैं। इस सागरों की आयुष्य, हाँ आप कहीं को, हाँ पुण्यपुरी, पुण्य अमरापुरी पामी, तो अमरापुरी इसलिए कहते हैं, पर अंते 84 माइल पर वो जाता है और ये एकदम चला जाता है। पुण्य के दिन, सुख के दिन होते हैं ना, वो अपने को पता ही नहीं चलते, ऐसे जाते हैं। यहाँ 100 साल का मनुष्य का जीवन, जो मनुष्य दुखी है, उस 100 साल का मनुष्य का जीवन और वहाँ का एक सागर के आयुष्य वाला देव, अगर दोनों को कहो कि जल्दी समय किसका गया, तो यहाँ 100 साल जल्दी चले गए, अरे 100 साल बहुत देर से गए और उनके एक सागर जल्दी खत्म हो गया, ऐसा उनको लगता है ऐसा भाषित होता है उनको। ये सापेक्षता का सिद्धांत है ऐसा। एक बार मैंने, हाँ वो कविता, वो बताया था ना मैंने, प्रेमी प्रेमिका का ऐसा, कि सापेक्षवाद का सिद्धांत क्या है। तो उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि भाई 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को यूं कहो कि आपको जलती हुई जो लो है उसके ऊपर 1 मिनट हाथ रखना है ऐसे, और एक प्रेमी प्रेमिका है, उसको कहो कि आपको 1 घंटे तक आपको एकांत दिया जाता है। अब दोनों में किसको ऐसा महसूस होता है कि बोर कौन होगा, मतलब ज़्यादा समय हुआ वो ऐसा किसको लगेगा? तो ये 1 मिनट वाले को वो 1 मिनट बहुत भारी पड़ता है, और उसको 1 घंटा ऐसा लगता है कि जैसे 1 मिनट हुआ है, और उसको 1 मिनट ऐसा लगता है कि जैसे इसके 1 घंटा हो गया है। तो देवों का ऐसा होता है कि वो सुख में इतने मगन हैं, इतने मगन हैं, इतने मगन हैं, तो उनका समय कहाँ चला जाता है, कब चला जाता है तो पता पड़ता नहीं। ऐसा देवों का अनुपम सुख होता है। जैसे नारकियों का 5 प्रकार के सुख बताते हैं ना, दुख बताते हैं, वो क्षेत्रोत्पन्न, फिर शरीर से, न फिर अन्य देवों द्वारा, ऐसे इन देवों को भी होते हैं। तो सबसे पहले तो देवों का सुख क्षेत्रोत्पन्न है, वो स्वर्ग की भूमि होती है। भूमि का मतलब वो सारे विमान होते हैं। विमान का अर्थ अपने हवाई जहाज ऐसा नहीं समझना। अपन विमान का मतलब क्या समझते हैं? हवाई जहाज। विमान का मतलब ऐसा है कि वो ऐसी पृथ्वी वहाँ स्वर्ग में होती नहीं है, वहाँ रत्नों से जड़ित विमान होते हैं जिसमें देव रहते हैं। वो सब रत्न से जड़ित होगा, सारा का सारा फर्श भी रत्न जड़ित होगा, ना सारा का सारा रत्नों से निर्मित होता है। मिट्टी विट्टी नहीं होती है, पानी वानी भी उसमें कोई भरता नहीं है, वहाँ बारिश वारिश होती नहीं है, ये सब नीचे ही अपने मध्यलोक में ही सारी चीज़ें होती है। तो वहाँ रत्नों से ऐसे भवन वगैरह बने हुए हैं, और एक एक विमान अपनी पृथ्वी है ना, उससे 1000 गुना बड़ा एक एक विमान होता है, और उसमें देव, अनेक प्रकार के देव अपने अपने भवनों में वो रहते हैं, आराम से मस्ती से वो रहते हैं। तो वो सबसे पहले तो उस क्षेत्र का उत्पन्न का सुख है। वहाँ जाओ तो वहाँ एकदम साता है। जैसे किसी क्षेत्र में जाते हैं तो अपने को सुकून मिलता है ना, वैसे वहाँ क्षेत्र में ही सुकून है। नरक में जैसे पैदा होते ही अपने को दुख कष्ट होता है, वैसे वहाँ सुकून मिलता है ऑटोमेटिक। दूसरा, उनका शरीर से उत्पन्न सुख है। उनका शरीर इतना साता युक्त होता है कि उस शरीर में रोग नहीं होते हैं। पहली बात तो अपना तो औदारिक शरीर है, सप्त धातु और सप्त उपधातु वाला शरीर है। इसमें अनेक प्रकार के रोगों की उद्दीर्णा निरंतर होती रहती है, पर उनका शरीर सप्त धातु और उपधातु से रहित होता है। उनको कभी रोग नहीं होता है, उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता है। वो वैक्रियक शरीर, और वैक्रियक भी शुभ वैक्रियक शरीर होता है। वो एक शरीर के अनेक शरीर बना सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ऐसी अनेक प्रकार की फैसिलिटीज़ वहाँ पर होती है। और मुख्य तो उनको रोग आदि की कोई, पहली बात तो उनके जरा नहीं आती, बुढ़ापा आता नहीं है उनका। और जिस समय जैसे जन्म लेता है देव उपाध्याया पर, 20 साल 22 साल का होता है ना, वैसा ऑटोमेटिक अपने आप गर्भ में नहीं रहना पड़ता उनको। इसलिए कहते हैं कि ये देवताओं की माता है, नहीं देवताओं के पिता है, ऐसे माता पिता के संबंध नहीं होते वहाँ कि इंद्र का पुत्र जयंत है, नहीं, ये सब मात्र पौराणिक काल्पनिक कथाएं हैं।
वास्तव में कोई इंद्र का पुत्र नहीं था, वहाँ केवल एक पति पत्नी का संबंध होता है, जो देव हैं और उसकी नियोगिनी देवियाँ हैं, बस। इसके अतिरिक्त माता भाई वो वगैरह संबंध होते नहीं हैं। सभी देव एक दूसरे के मित्र होते हैं, परंतु वहाँ भी क्या है कि वो परिवार बनाने का एक प्रकार के वो स्वभाव पड़ गया ना, व्यक्ति की टेव पड़ गई है, इसलिए वहाँ परिवार बना जरूर लेते हैं। जो उनसे बड़े होते हैं ना, जो बड़े होते हैं उनको वो अपने गुरु की तरह रखते हैं। जैसे सामानिक देव होते हैं, इंद्र के बाद सामानिक देव होते हैं, तो वो उनके बड़ों की तरह, माता पिता की तरह मानते हैं उनको। माता पिता होते नहीं हैं, कोई इनसे जन्मे नहीं है, पर ऐसा उनको मानते हैं। किसी को वो पारिषद होते हैं तो सभासद की तरह मानते हैं। ये व्यवस्थाएं बना रखी है, पर सभी अपने अपने स्वतंत्र स्वयंभू हैं, किसी से किसी का कोई संबंध होता नहीं है। ऐसा उनका सुख है, वो शरीर से उत्पन्न सुख है, फिर उनके पुण्य से उत्पन्न सुख है। ऐसा अनेक प्रकार का होता है। कल्प वृक्षों की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। कल्प वृक्ष भोग भूमि में होते हैं, क्योंकि वहाँ कल्प वृक्ष उनको भोजन आदि के लिए, भवन आदि के लिए कल्प वृक्ष की आवश्यकता है, परंतु वहाँ उनको भवन बनाने नहीं है, वहाँ उनको भोजन करना नहीं है, वहाँ कुछ करना नहीं है। वहाँ तो उनको ऑटोमेटिक वो कल्प वृक्ष होंगे, वहाँ सुविधाएं ऐसी हैं, पर वहाँ आवश्यकता नहीं है उनको। वो भोग भूमि में सब प्रकार की आवश्यकता होती है, बाकी ऐसी चीज़ें अपने आप उनको मिल जाती हैं। भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, लगती है तो भी वर्षों हजारों वर्षों बाद 1 सेकंड के लिए उनको लग जाती है। निद्रा नहीं आती है, देव कभी सोते नहीं। कितना आते हैं, या मनुष्य लोग में भी आते हैं, अपने को यूँ लगता है कि सोते नहीं हो, तो इनका सुख क्या। अपने को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इनको सोने नहीं मिलता है, उनको खाने नहीं मिलता है, वो कुछ करते रहे तो इनको सुख किस बात का। तो हमने खाने में, पीने में, सोने में, इसी में सुख मान रखा है, इसी को हम सुख कहते हैं। इसलिए हमको वो कल्पना लगता है कि ये तो एक कल्पना से बाहर की वस्तु है, वास्तव में कभी नहीं सोते, नींद नहीं आती उनको। उदय उनका इतना मंद है, ऐसा नहीं कि उनके दर्शनावरणीय कर्म खत्म हो गया। दर्शनावरणीय कर्म खत्म नहीं हुआ उनका उदय भी है निरंतर, पर वो केवल उदय है, उदीर्णा नहीं है। अभी अपने सबका दर्शनावरणीय का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है, परंतु नींद किसको आ रही है? किसी को नहीं आ रही है। तो उदय चलना वो अलग बात है, और नींद कब आएगी? जब इसकी उदीर्णा होगी, तीव्र उदय आएगा, तब अपने को नींद आने लगती है। तो ये है देवों का सुख। अब अपने को देव बनना हो तो क्या करना चाहिए? हैं? देव बनवा માટે રત્નત્રયની સાધના કરવાની। જલસા એમનું છે ને, નૃત્ય, વાદન, ગાયન, નાટક, એવા પ્રકારના જુદા જુદા પ્રકારના, અને પછી ફરવાનું ઘણું એમનો ફર્યા કરે છે। આજે પેલા પર્વત ઉપર જાય ને પેલા પર્વત ઉપર જાય ને આ કરે ને પેલો કરે ને, એ પાછું પૂજાઓ વગેરે કરે ને, દિવસો મહિનો ચાલ્યા કરે। हाँ, हिल स्टेशन पर जाए ने, आ जाए ने, पेलो जाए, मरी जाए त्या जाए। हाँ, एवा प्रकारनो। અને હવે જ્યારે જઈશું ત્યારે ખબર પડશે વિશેષ તો શું છે ભાઈ। આપણે તો શાસ્ત્રકર્તાએ લખ્યું છે, ઓ અનાદિવાર જઈ આયા ભાઈ, ઠેઠ ઉપર ગ્રેવેક સુધી જઈ આયા। હે, ત્યાં બુકિંગ કોબા તમે આવો તો બુકિંગ, કોબાના સ્થાયી સદસ્ય થાઓ તો તમે રિઝર્વેશન દેવલોકનું તો થઈ જાય। બીજું ભલે થાય કહો નહીં થાય, પણ આનું રિઝર્વેશન થઈ જાય। કોબા આવો એટલે કહેવાનો મતલબ ભાવથી। બાકી અહીંયા તો ઘણા બધા આવે ને જાય ને, કોબાના નિમિત્ત, આ જ ભગવાનના નિમિત્તથી 7મી નરકમાં જવાય એવું ને, આ જ કોબાના નિમિત્તથી તમે નરકમાં જાઓ, વિપરીત ભાવ થાય જાય ને। આ કાળના નહીં જાય, પણ બીજા તો જાય ને, એમાં શું વાંધો છે? સિદ્ધાંત તો એમ જ છે ને, તમે ભગવાનનો અવર્ણવાદ ઇત્યાદિ કરો તો તમે 7મી નરકમાં જાઓ, કેમ કે અનંતાનુબંધી છે એનાથી, તો આનાથી જવાય, એમાં તો શું વાંધો ને? મોક્ષ, આ જ ભગવાનથી મોક્ષે જવાય। બંને માર્ગ ખુલ્લા જ છે, એટલે એક જ વસ્તુ, વ્યક્તિ એક જ છે ને, એનો જ તમે
અવર્ણ વાત કરો, અવિનય કરો તો તમે નીચે જાઓ, એનો જ તમે વિનયાદિ કરો તો તમે ઉપર જાઓ. એમ આ કોબા એક જ છે. અહીંયા જ રહીને ક્લેશ કરો તો નીચે જાઓ, અહીંયા જ રહીને સાત્વિક ભાવ કરો તો. આજે મને નીતિનભાઈ પૂછતા હતા કેમ છે, મેં કીધું મસ્ત છે. મેં એમને કીધું જે કોબામાં રહીને જે સુખી નથી, મસ્ત નથી, એ મહામૂર્ખ છે, મૂર્ખનો શિરોમણી છે. હવે અહીંયા રહીને શું જરૂર છે બતાવો, કોની શું ટેન્શન? અહીંયા 2 ટાઈમ 3 ટાઈમ મળે છે, 3 ટાઈમ ખાવા મળે ને ચા મળે હજી બીજું ને. આજકાલ તો કેરીઓનો રસ ને આપણે પેલા 22 માસાથી જલસા કરાવે છે રોજ, અને મસ્તીથી રૂમ છે, ત્યાં બધી ફેસિલિટીઝ છે, અને આપણે તો વાસણ નથી કરવા પડતા, બર્તન નથી કરવું પડતો, પેલું બધું સાફ સફાઈ કરીને કરી જાય છે. ઘરનું કાંઈ કરવું, રસોઈ બનાવી નથી પડતી, કાંઈ નહીં. રૂમમાં જવાનું, બેલ પડતો અહીંયા આવી જવાનું, પાછા રૂમમાં જવાનું, ખાટલાથી પાટલા ને પાટલાથી ખાટલા. હા એવો છે. હા અહીંયા જ છે. એનો ફાયદો કેટલો? જો દુનિયામાં ઘરે રહીને કેટલા બધા પ્રપંચો કરીને, કેટલી બધી મહેનતો કરી અને ઉલટું પાપ બાંધે. વ્યક્તિ બાંધતા ક્યાં વા? પાપ કરતા. યહાં કુછ નહીં કરના ઓર પુણ્ય. એટલે જ તો પુણ્ય છે ને, એટલે જ તો સાધના છે ને બધી. પણ સુખ કોઈને જોઈતું નથી, શાંતિ કોઈને જોઈ, સંસારની અશાંતિ પસંદ છે, એમાં આસક્તિ છે. એટલે જો ત્યાગમાં કેટલું સુખ છે કહેવાનો અર્થ. ખાલી ગ્રહ ત્યાગ કરવો પડે છે બસ. ઘર તમે છોડીને આવ્યા, 5 દિવસ 7 દિવસ જેટલા દિવસ આવ્યા, ઘરનું જે થવું થાય, અહીંયા તમે મસ્ત થઈ જાઓ બસ. એટલે અહીંયા સ્વર્ગ સુખ તો અહીંયા સ્વર્ગથી થોડું 2 કદમ વધારે છે. સ્વર્ગમાં કદાચ સત્સંગ આદિ હોય ને, અહીંયા સત્સંગ આદિ છે બધું. અને કોબામાં તો મેડિકલ સુવિધા પછી. અહીંયા રહીને આપણે બીમાર પડીએ ને તો બીમાર પડવાનો એક મજા છે. કેટલા બધા કેટલી દવાઈઓ ને કેટલા બધા સજેશન્સ ને કેટલી બધી સેવા થાય આપણી, ને મોટા મોટા બેન્ચરી જેવા આપણી સેવા કરે મેડિકલ મોટા. તો આટલું પુણ્ય કોને હોય બતાવો? આવું મહાન પુણ્ય છે. પણ છતાં પસંદ એ તો અરસપરસ છે. એ તો આખો हाँ हाँ किस्मत वाले को आने मिलता है. બધા કિસ્મત છે. ચલો માઇક. હા માઇકમાં પ્રશ્ન. હા આજે સ્વર્ગના જે સુખની વાત ચાલે છે, તો એમાં નીચેના જે બધા સ્વર્ગો છે એમાં સત્સંગ આદિ નહીં હોય? ના, સર્વથા એવું નથી. બધી જગ્યાએ સમ્યક દર્શન હોય, બધી જગ્યાએ તત્વ ચર્ચા હોય, બધી જગ્યાએ દેવ પૂજન આદિ કરતા હોય, સમોસરણ આદિમાં જતા હોય, અહીંયા સુધી કે ભવંત્રિક વગેરે બધામાં આ વ્યવસ્થા છે. પણ નીચે નીચેમાં સ્વર્ગમાં શું છે કે પેલી નિમ્ન પ્રકારની ભોગ સામગ્રી હોય, જેમ કે દેવીઓ વગેરે, આ બધું આ નિમ્ન પ્રકારની ભોગ સામગ્રી છે. એમાં ઉપરના સ્વર્ગમાં પેલો જે સાંસારિક ભોગાદી છે ને એ ઓછા થઈ જાય. એટલે કાય પ્રવિચાર આ એશાનાથ, એટલે કાય પ્રવિચાર એશાન સ્વર્ગ સુધી છે. જે મનુષ્ય વગેરે આપણે કાય પ્રવિચાર કરે ને એકબીજાને સંયોગ વગેરે, તો સ્ત્રી પુરુષ વગેરે, તો આ તો ખાલી ભવંત્રિક, એટલે ભવનવાસી, વ્યંતરવાસી અને જ્યોતિષ્ક અને સ્વધર્મ અને એશાન, આ 5 પ્રકારમાં આટલામાં જ કાય પ્રવિચાર થાય. પછી આગળના 2 સ્વર્ગ છે, એમાં માત્ર સ્પર્શ આદિથી એમને સુખ મળી જાય ઓટોમેટિક. પછી આગળના જે 4 સ્વર્ગ છે એમાં તો માત્ર એમને રૂપ જોવાથી જ એમને એવા પ્રકારની તૃપ્તિ થઈ જતી હોય. પછી આગળના જે છે એમને માત્ર શબ્દ સાંભળવાથી, કે દેવી સામને છે જ નહીં, પણ ખાલી શબ્દ જ સાંભળવા મળી ગયા ને તો એમને તૃપ્તિ થઈ જાય કે ભાઈ હા છે, બરાબર છે,
મારે તને જોવાની જરૂર નથી. દેવી દેવતા બંનેને એટલો પ્રેમ હોય. વોટ્સએપથી, હા, વોટ્સએપથી થઈ જાય આખું. અને ઉપરના જે હજી 4 સ્વર્ગ રહી ગયા, એમના તો માત્ર મનમાં વિચાર દેવીની યાદ આવી અથવા એમના દેવતાની પતિદેવની યાદ આવી તો શું કરે, અંતઃપુરમાં બેઠા બેઠા જ એ બધા હોય તો સ્મરણ કરી લે, બસ તૃપ્તિ મળી ગઈ, જોવાની જરૂર નથી. આટલી કામ વાસના ઓછી થઈ જાય છે. અને 16 સ્વર્ગ આગળ 9 ગ્રેવેક છે, ત્યાં તો દેવીઓ હોતી જ નથી, માત્ર દેવ હોય છે, રિદ્ધિધારી દેવો. એટલે તો ત્યાં આવો સંસારનો કોઈ સુખ વગર છે જ નહીં. ત્યાં તો એમને સાતાથી ઉત્પન્ન સુખ છે, એમના શરીરથી, ત્યાં ક્ષેત્ર છે, ત્યાંનો પુણ્યનો ઉદય, સાતાનો ઉદય એટલો જબરદસ્ત છે કે એમને કોઈ પણ વસ્તુની આવશ્યકતા પડતી નથી, ઓટોમેટિક સુખ થાય છે. આપણે હજી સુધી સાતા જોઈ નથી, સાતાનું સુખ છે ને એ ખબર નથી. એટલે આપણને એમ લાગે કે બીજી વસ્તુનો ઉપભોગ કરીએ ત્યારે સુખ આવે છે, એવું નથી. જો અંદર સાતાનો ઉત્કૃષ્ટ ઉદય હોય ને, કોઈ વસ્તુ નહીં જોઈએ, ઓટોમેટિક આપણને શરીરથી જ અથવા એ ઇન્દ્રિયોથી જ એવા પ્રકારનું સુખ આવે છે ઇન્દ્રિયોનું, છે શરીરનું, પણ એ સાતા વેદનેના ઉદયથી આવે છે. એટલે ત્યાં પછી જ્ઞાન ધ્યાનમાં અને એવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ હોય છે. ગ્રેવેક પછી જે 9 અનુદિશ વિમાનો, અનુત્તર વિમાનો, ત્યાં હંમેશા જ્ઞાન ધ્યાનમાં લાગેલા રહેતા હોય, તત્વચર્ચા વગેરે, સાગરો સુધી ત્યાં એવા પ્રકારથી અત્યંત સાત્વિક. અને ઉપર હજી વિકલ્પ ઓછા, ત્યાં જવાનું વગેરે આખું ઓછું થઈ જાય છે. ગતિ, શરીર, પરિગ્રહ, અભિમાન આ ઓછું થઈ જાય ઉપરના દેવો. ગતિ એટલે નીચે જવું ને અહીંયા ફરવાનું ને આ ફરવાનું ને એ ઓછો. શરીરે નાનું બની જાય, પરિગ્રહ પણ ઓછો થઈ જાય, કંઈ રાખે નહીં, દેવીઓ નથી, કાંઈ નથી, પેલો કોઈ સંગીત વાજા એ કાંઈ નહીં રાખે એમને પાસે. નહીં તો દેવોને ત્યાં એમના રૂમમાં જઈને જુઓ ને તો આવા પ્રકારની એક બાજુ વીણા પડી હોય ને આ પડી હોય ને પેલો પડ્યું હોય ને આમ પછી નાચે ને આવા પ્રકારનું ઘણું કરે. નીચેના દેવો દેવી દેવતાઓને છે, ઉપરના દેવી દેવતાઓને એવું કોઈ જોઈતો નથી, જ્ઞાન ધ્યાનમાં મસ્ત છે. આગળ કોઈ પરિગ્રહ ને અભિમાન પણ ઓછો, આવા પ્રકારથી હોય છે દેવોનું. આ દેવલોક છે. પણ હવે આગળ એમ કહેશે કે આ દેવલોક પણ હે છે, અહીંયા પણ અનાદિકાળથી અનંતવાર જઈ આવ્યા, અહીંયા જવા જેવું નથી, પણ જવું પડે તો વૈરાગ ભાવથી, સહજ ભાવથી ત્યાં રહેવાનું. ઈશ આપણે હવે કાલે લઈશું. નેક્સ્ટ કોઈનો પ્રશ્ન હોય તો 1 મિનિટ છે તો ધ્યાન. એકવાર 2 શ્લોક વાંચ્યા, એનું પારાયણ કરી લઈએ બધા સાથે. પહેલો હતો યત્ર ભાવઃ શિવમ દત્તે દ્યોઃક્યદૂરવર્તિની યો નયત્યાશુ ગવ્યોતિમ ક્રોશાર્ધે કિમ સસીદતિ ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकोकसां सौख्यं नाके नाकोकसामिव. ओम जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो. हिजन वाणी भारती तो हि जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन. देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ. 9 नमस्कार महामंत्र. आत्म अनुसंधान. शांति शांति शांति. जय सद्गुरु.